द पैरामीटर डेटा यू वांट टू गिव यू कैन गिव। कलर दिया है यहाँ पे, हाइट दे सकते हो, वेट दे सकते हो, व्हाट एवर द पैरामीटर यू वांट टू टेक, सो यू कैन टेक। एंड आफ्टर राइटिंग दैट सेल्फ डॉट कलर, अगर हाइट है तो फिर से लिख जाएगा सेल्फ डॉट height equal to height. If weight will be there, self dot weight equal to weight. Okay, age will be there, age. Then self dot age equal to age. Understood? So this is the way you will be creating it. Okay, and after that what you need to give? You need to give its method. तो जो भी मेथड आपको लग रहा है, लाइक ह्यूमन बीइंग यू आर कंसिडरिंग, walk, talk, eat, run, whatever the method you want to take, you can take. Inside that one, whatever the things you want to print, you can print. So I have inside that walk, I am printing I can walk. Inside that talk, I may print I can talk, but what we need to do, ये जो आपने लिखा है इसको भी एग्जीक्यूट कराना था, so that's why you have created it. So देखो, we have created one object with the help of class, and inside that class what you need to give parameter that you have passed in object, आपको डायरेक्टली वही देना है, वही देना है एंड वही देना है, ठीक है। एंड नाउ आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। सो वी आर जस्ट प्रिंटिंग p1 डॉट टॉक। सो p1 डॉट टॉक में क्या है, आई एम सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट कलर में क्या है, ब्लैक। ओके, आफ्टर दैट p1 डॉट वॉक, सो वॉक में क्या है, आई कैन वॉक। ओके, p2 डॉट वॉक, सो आई कैन वॉक। p2 डॉट टॉक, सो आई एम वाइट। अंडरस्टूड कैसे हो रहा है ये सारी चीजें, समझ में आया? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा I, 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 मैं भी समझ रहा हूँ चीजों को, बट ये समझ में आ गया ना? यहाँ पे कोई दिक्कत? नाउ व्हाट वी आर क्रिएटिंग क्लास डॉग। ओके, and inside that we can, what we can write, self, whatever the name we are want to give, age we want to give. Okay, and after writing this we can what, we can write its method def run. After that self. Okay, and inside that one we can write like print dog can run, simply like this. Okay, after creating one method, what we need to give, we need to give its class. Inside that we need to give name. So I have given name as like doggy, and second age is 5 years I have given. So whenever we will be printing it, we have created it with the help of object g. So whenever we will be printing g dot run, so what it will give, it will give dog can run. Understood? This is the way you will be creating. Now we are creating one class car. Okay, inside that one, what we want to give model name and year. Okay, inside that what we are doing, self dot model name equal to model name, self dot year equal to year. ये आपने बना दिया ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज योर क्लास। आफ्टर दैट यू नीड टू क्रिएट मेथड। So inside that display, what we want to print, self dot model name and self dot year. जो भी आपने यहाँ पे लिखा है ना, वही सेम चीज यहाँ पे लिख दिया। After that, I have created one class C1. Inside that one, we will be taking class, and inside that one, whatever the parameter we are giving, देखो self का कुछ भी नहीं आता है, self just supporting model name Toyota and year of manufacture 2016. जैसे ही मैंने C1 dot display किया, C1 dot display, so it will, what it will print, its model name, its name, and self dot year is its model. Understood? समझ में आया? से बताता हूँ। तो फिर से बताइए थोड़ा। आपने अभी तक ये समझा ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? हाँ सर। ये समझा? तो वही हम्म। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कार बना रहे हैं। सिंपल सा समझिएगा, कार में क्या क्या होता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है, टायर्स होते हैं, विंड स्क्रीन होता है ना, क्लच होता है, गियर होता है, ब्रेक होता है,
होता है। ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स। अब इन सभी का कुछ ना कुछ तो काम होता है ना, हाँ वर्किंग। सर। उसको क्या बोलेंगे, मेथड। मेथड। अंडरस्टूड। हाँ। हम लोगों ने क्या किया, इतना सारा एग्जांपल ना लेके छोटा सा एग्जांपल लिया हम लोगों ने, कि एक क्लास कार बनाइए, ठीक है। उसमें आपको क्या रखना है, मॉडल नेम रखना है और ईयर रखना है। मतलब वो कार जो है कौन सा मॉडल का है और किस ईयर में वो आया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेल्फ इज जस्ट यूज्ड फॉर सपोर्टिंग। ओके, तो सेल्फ डॉट मॉडल नेम इक्वल टू मॉडल नेम, दिस इज द वे, लाइक इस तरीके से लिखते हैं इसको। After that, self dot year equal to year. So these two things you have given. After that, हम्म। you have created your object. After that, you need to create what? You have created your object or attribute you can take, and you want to create method. Okay. अब मेथड में हम लोग क्या कर लिया, डिस्प्ले को देख लिया, ठीक है। डिस्प्ले, इसमें हम लोगों ने सेल्फ को रखा, सेल्फ सब में रखेंगे। एंड इनसाइड दैट वन, प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने सेल्फ डॉट मॉडल नेम एंड सेल्फ डॉट ईयर कर दिया, ठीक है। अब उसी को हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाकर प्रिंट करा दिया। बताइए। अब देखिए, जब ये क्लास का जो एट्रीब्यूट है, व्हाट एवर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग अप टू नाउ, सो व्हाट वी हैव डन, क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, मेथड, up to now we have understood these three things. Okay, understood. Now ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास आपका बना ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड से, इस क्लास का भी दो तरीके से पार्टीशन किया हुआ है। इसको बोलते हैं एक इंस्टेंस वेरिएबल, सेकेंड को बोलते हैं क्लास वेरिएबल। फर्स्ट इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड सेकेंड इज क्लास वेरिएबल। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल? मतलब क्लास वेरिएबल क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। अभी आपने देखा ना, ह्यूमन बीइंग के लिए कौन सा एट्रीब्यूट सेम था, आईज, नोज, ईयर, सेम फॉर क्लास वेरिएबल। इट विल बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल इज व्हाट, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलर और डिसिमिलर वाला मैंने बताया था ना, तो सिमिलर वाला किस में आएगा, क्लास वाले में आएगा, और डिसिमिलर वाला किस में आएगा, इंस्टेंस में आएगा, ठीक है। ये देखते हैं चीजों को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सी, we are creating class human being. Okay, class human being, this is what class attributes, so eyes, legs and hand, this will be same for each and everyone. This will be same for each and everyone. So this class human being, after that eyes, legs, hands, what were the things that you have written, that is known as what, class attributes or class variable. Okay, after that we are creating what, object. So define init constructor, color and hair color I have taken, self dot color, self dot hair color, and after that we are creating what, method. It can walk, it can talk, like they can walk, they can talk. After that in talk, what we are going to print, my body color and my hair color. Inside that format self dot color, self dot hair color, same डिक्टो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। And after that what you need to do, you need to create one object. So you have taken class, and after that inside that you have written color fair hai, hair color black hai. After that what you are going to print, p1 dot talk. तो talk किया तो कैसा print हुआ, my body color is fair and my hair color is black. Okay, after that we have printed p1 dot eyes. तो p1 dot eyes का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ, समझ में आ गया। इफ वी आर प्रिंटिंग p1 dot legs, p1 dot legs will also give the 2, p1 dot hands, it will also give the value 2। तो ये जो क्रिएट हुआ वो सबके लिए सेम था ना, यहाँ पे देखिए सबके लिए सेम था। सो आई हैव यूज्ड these थिंग्स।
अंडरस्टूड और नॉट? ये सबके लिए सेम होगा और ये सबके लिए डिफरेंट होगा। ऊपर हम लोगों ने देखा था ना, सिमिलर और डिसिमिलर, सेम वही चीज है। समझ में आया? Yeah. ओके 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 ओके। तो इस तरीके से चीजों को करते हैं। Yes, sir. आपने ये पढ़ रखा है ना? Yes, sir. हाँ, तो बताइए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ में आया? Yes, sir. ओके। कुछ कुछ सिमिलर लगा या डिसिमिलर लगा? सिमिलर है सर, जैसे मैंने ये ओप्स जो है ये जावा से किया था, तो हाँ हाँ। सिमिलर ही है। बस नाउ बस वो सिंटेक्स थोड़ा बहुत डिफरेंस, बाकी सब चीज सिमिलर है। ओके। एंड डू यू नो अबाउट इनहेरिटेंस? यस सर। इनहेरिटेंस होता है और क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फ इनकैप्सुलेशन, एंड Encapsulation. पॉलीमॉर्फ। Polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म, यस सर। Encapsulation. इनकैप्सुलेशन भी होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। सो these all things, ये बेसिकली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट रोल के लिए जा रहे हो, देन इट विल बी इम्पोर्टेंट। बट आपके डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में इतना ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होता है। सो आई एम जस्ट डिक्टेटिंग यू सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। सो इनहेरिटेंस हम लोग देखेंगे। ओके। दीज थिंग्स आई नो यू पीपल आर नोइंग, बट इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे चीजों को। ठीक है। सो आई विल बी डीलिंग विद इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज व्हाट? Can you please explain me inheritance? Yeah. यस सर। Yes, सर sir. सर इसमें एक With the help of पेरेंट्स open class, क्लास। we एक एक करके, एक एक करके। अरे एक एक करके बोलो। create a new class with the help. या करण, टेल New मी। class create करते हैं सर old class के help. Create a new class with the help of old class. And what is the advantage and disadvantage of creating that? सर पेरेंट क्लास की ऑल एट्रीब्यूट्स वो चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं, प्लस न्यू एट्रीब्यूट्स भी ऐड होते Okay, okay, okay. So there is some disadvantage of creating that. तान्या, आप बताइए। सर इनहेरिटेंस में एक पेरेंट्स क्लास होता है हम्म और चाइल्ड क्लास होता है। फिर हम्म, उसमें इसका एडवांटेज ये होता है कि जो भी हम लोग प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट्स जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं वो चाइल्ड क्लास में भी होता है, और हम लोग इसमें कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता, हम लोग यूज कर सकते एग्जैक्टली। हैं। तो इनहेरिटेंस में यही यही होता है सर सारा। ओके 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 ओके, हाँ, आप सभी लोगों ने सही बोला। ठीक है। So, in Python, there is one concept like do not repeat yourself. Okay, like don't, if you have written one code, then don't write it again and again in the same line of code. Okay, so what we need to do, we have used one technique that is called inheritance. Inheritance means what? Simple सा word में, some of the property you have like you have taken from your father, no? So from your grandfather, your father had taken some property, and from your father you have only taken property. From you, your child will take some property. So this is what? Inheritance. Okay, whatever the property that it contains, some of the property is taken by father, and then you, and then your child. Okay, this is the way your, in this things, in this oops, your code will work. Okay, so just see, we are having two class. Okay, first is class human being. Okay, human being consists of what? Some of the method, like they can breathe, they can eat, they can see. Okay, these are the three methods that human being consists of. And after that, class animal is also there. What it contains? It contains the same method. They can breathe, eat and see. अब आपने देखा यहाँ भी सेम मेथड है, यहाँ भी सेम मेथड है. So there is like one property that we need not to repeat that code. Okay, so
इनहेरिटेंस विल कम इनटू पिक्चर। इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि ऊपर अगर आपका जो प्रॉपर्टी है, ऊपर जो आपका ये प्रॉपर्टी है, उसको अगर आपको सेम एज इट इज यूज करना है तो आप यूज कर लो इनहेरिटेंस को। कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सो सी what you need to do, we have created one like class living things. They can breathe, eat and see. Okay, they can breathe, eat and see. After that I have created one human being. Inside that human being, what we want, all those methods, all those property, I want to copy it down to human being. So living things जो था वहां पे human being के पैरामीटर में living things रख दो। ठीक है। And after that I have created another class animals. Inside that whatever the property that human living things consists, living things को यहाँ पे रख दो। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली, दिस टॉप वन लिविंग थिंग is what your parent class or base class. Okay, and this human being and animals, these are what your child class. Okay, we can also call it as subclass, we can also call it as derived class. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रॉपर्टी इसको मिला और इसको मिला। ठीक है, समझ में आया ये चीजें? अंडरस्टूड। इसका प्रॉपर्टी इसको मिला। अब कोड एग्जीक्यूट करा के बता देता हूँ सबसे पहले। तो इनहेरिटेंस जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल इनहेरिटेंस? देयर विल बी वन पेरेंट क्लास, ओके, एंड वन चाइल्ड क्लास। मतलब पेरेंट से डायरेक्टली आपको मिला, उसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स देयर विल बी टू पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास। दो पेरेंट क्लास रहेंगे एंड एक चाइल्ड क्लास रहेगा, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। आफ्टर दैट these all example I'll tell you. Next one is multi-level inheritance. Multi-level inheritance means what? There will be one parent class and two child class. दो चाइल्ड क्लास है। तो ये जो आपने ऊपर अभी देखा, ये कौन सा इनहेरिटेंस का एग्जांपल है बताइए? कौन सा इनहेरिटेंस है? सिंगल है, मल्टीपल है या मल्टी लेवल है? तो सिंगल। अरे अरे क्या बोल रहे हो? मल्टी लेवल का। सिंगल में क्या होता है? वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। ओके, मल्टीपल में क्या होता है? टू पेरेंट्स वन चाइल्ड। टू पेरेंट एंड वन चाइल्ड। वन चाइल्ड। ओके, मल्टीपल लेवल, मल्टी लेवल मीन्स व्हाट? वन पेरेंट टू एंड चाइल्ड। टू चाइल्ड, C1 एंड C2। अंडरस्टूड? ये चीजें आपको समझनी होंगी एंड लेट्स डिस्कस द कोड। ओके, नाउ सी we have created one class PA1. Okay, inside that class what I have taken, some variable x equal to 1. After that we have created like some function that is self, and we have printed it by. Okay, self में function f1 में print करना है by को। After that I have created one class PA2, and what I want this property of PA1. So I have written PA1 inside it. Okay, and after that I have taken one variable y equal to 2, and after that self print hi. These two things we have created, and after that we have created one class, child class, and inside that child class what we are executing, we are just setting the property of PA2. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने PA1 एक बनाया क्लास, एक PA2 बनाया। PA2 में क्या किया? PA1 का प्रॉपर्टी यू हैव टेकन। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव मेक वन चाइल्ड क्लास। इनसाइड दैट चाइल्ड क्लास व्हाट यू हैव यूज्ड? PA2। तो PA2 यूज किया मतलब क्या? PA1 एंड PA2 का भी प्रॉपर्टी यूज कर लिया। समझ में आया ये चाइल्ड क्लास? अब देखिए व्हाट वी आर प्रिंटिंग इट, एग्जीक्यूटिंग इसी object 1 we have created, and we are just printing child 1. So child 1 is what? This one. What we are calling child class, and then we are printing object 1 dot y. तो PA2 का y क्या है? 2 है। You have used ना?
ये क्या है, चाइल्ड क्लास वी हैव एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट वी आर ऑब्जेक्ट वन डॉट वाई, तो आपका क्या हो गया, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट वन डॉट एफ वन, ऑब्जेक्ट वन डॉट एफ वन, अब ये क्या प्रिंट कर दिया आपको, हाई प्रिंट कर दिया। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हाई प्रिंट हुआ, बिकॉज pa2 का प्रॉपर्टी इसने यहाँ पे ले लिया। समझ में आया ये चीजें किस तरीके से काम कर रही है। अगेन इफ आई विल बी टेकिंग वन एग्जांपल, सेम सब कुछ है, सारा कुछ सेम है। राइट नाउ व्हाट आई हैव रिटन pa1 कॉमा pa2, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट pa1 लिखा, pa2 लिखा। I have written pa1 comma pa2, okay। After that we have made one object and then child class we have called it। Now object 1 dot x, they have what they have printed 1, object 1 dot y, y में जो था। Now object 1 dot f1, what we have taken y, so इसने किसका प्रिंट कर दिया, y का। क्यों y प्रिंट हुआ, can anyone will tell me। यहाँ पे when we have printed f1, so it is printing high, okay। यहाँ पे बाय होना चाहिए था ना जबकि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो बताइए रीजन। सो यू माइट नॉट बी नोइंग द रीजन if your whatever this class that you are making, okay, अगर ये प्रेफरेंस फर्स्ट रहेगा ना, अगर ये प्रेफरेंस इसका इस तरीके से रहेगा फर्स्ट वाला, तो इसी को प्रेफरेंस मान के किया जाएगा। इफ यू आर टेकिंग टू पेरेंट क्लास, ओके, देन फर्स्ट पेरेंट क्लास प्रेफरेंस विल बी टेकन आउट, ओके। वहां पे क्या हुआ था, आपने डायरेक्टली pa2 लिया था, दैट्स वाई उसमें क्या हुआ था, नीचे वाला जो आपका एग्जीक्यूट था वो हो रहा था। अब इसमें आपने क्या लिया, pa1 एंड pa2 लिया, सो दैट्स वाई व्हेन यू हैव एग्जीक्यूटेड फंक्शन 1 देन इट हैज गिवन मी व्हाट, फंक्शन 1 का क्या है बाय, तो बाय दे दिया। प्रेफरेंस फॉलो अप करता है अगर आपने यहाँ पे लिख दिया पेरेंट क्लास 1 कॉमा पेरेंट क्लास 2 एंड आपने यहाँ पे फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया, तो पेरेंट क्लास 1 का पहले आएगा एंड देन पेरेंट क्लास 2 का आएगा, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पेरेंट क्लास 1। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया।